नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत आगमन की जानकारी देते हुए बताया कि मुंबई में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मैक्रों अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति श्रीमान इमैनुअल मैक्रों का मुंबई शहर में आगमन हो चुका है। आज दोपहर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की बातचीत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ होनी है। इसमें दोनों लीडर्स, दोनों नेता भारत फ्रांस सामरिक साझेदारी को किस प्रकार से और प्रगाढ़ बनाना है, इस पर बातचीत करेंगे। और शाम को भारत और फ्रांस के बीच में जो इनोवेशन की साझेदारी है, नवाचार की पार्टनरशिप है, इस पर कई एक प्रोग्राम होने वाली है। और एक बेहतरीन प्रोग्राम गेटवे ऑफ इंडिया पे दर्शाया जाएगा। एक रंगीन प्रोग्राम, एक उमंग भरा प्रोग्राम, जो यह भी बात कहेगी कि इस साझेदारी में कितना रंग है, कितना उमंग है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने 24 घंटे के भीतर छात्रों से कृत्रिम मेधा के जिम्मेदार उपयोग के लिए सर्वाधिक संख्या में प्रतिबद्धताएं हासिल करने का रिकॉर्ड बनाते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। इस पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिनिर्णायक प्रवीण पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। For the most pledges received for an AI responsibility campaign in 24 hours. The secret is in the title, and I need to just go a little bit more and explain it. I won't be so short, but please let me explain a little bit. Before I officially announce the result, I would like to thank all of you being part of the Guinness World Records attempt. Whether you're involved in organizing, coordinating, or simply pledging, very important. You are absolutely brilliant and essential for this record attempt. Guinness World Records is about celebrating extraordinary human achievement and the power of coming together. Thank you all. Now to the record. This is a brand new record. We like new records. But it's not just about turning up and saying, can we do this record? We actually set the guidelines and give you a chance to perform to those guidelines. Because it's a new record, we also don't say, come with 10 or 20 people. We actually set you a challenging target of 5,000. But when we find out the result, whether the 5,000 was challenging or not, is a matter of debate. But minimum was set at 5,000. Now I'll ask you somebody later on what the minimum was. I might pick on you, Sarah. Okay, for the purposes of this record, responsible use of artificial intelligence is defined as ethical, lawful and socially beneficial use of AI technologies. This can include commitments to avoid misuse, respect privacy and data protection, mitigate bias and harm, and promote transparency, accountability in AI-assisted activities. I go through this because this is important. These are guidelines. I know you've attempted the record this time, but anywhere in the world, the same rules will apply whoever attempts this. So this is important that not only do you comply with the guidelines, anybody else has to comply with the same. We'll make sure of that. The pledge must be part of the same campaign and must relate to responsible use of artificial intelligence. All pledges must carry the same central theme. Pledges that can be seen as directly endorsing a particular product, company or service are not acceptable. The text of the pledge must be pre-approved. We did that. The pledge must contain the following information. The word pledge. An explicit indication that the individual is making a promise, and a clearly stated behavior or action that the individual agrees to adopt. That is important. Each participant must participate once only. As the attempt was made online, measures must be put in place to ensure that the website, web page, or the platform used is secure. Okay. The pledge can only be made by human participants, and no automated systems or bots are allowed. And at this stage, I would like to thank our digital auditor and the two forensic experts we used to actually check. I'm no expert in these matters. I'm a humble engineer. I'm no expert, but really,
We're grateful for the witnesses and the auditor to ensuring that only individuals were counted and only the forensics were done to ensure that the right number was reached. Okay. I won't go into any more of those. Do you remember what the minimum was? 5,000? Exactly. And so, with a total of 250,946 India AI and Intel India, you are the Guinness World Records title holders for the most pledges received for an AI responsibility campaign in 24 hours. You are officially amazing. उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते। जो हमारे प्रतिपक्ष के और उसमें भी मुख्य प्रतिपक्ष का जो आचरण रहा है, संवैधानिक प्रमुख के प्रति भी और एक नारी के प्रति भी जिस प्रकार का अभद्र और अशिष्ट व्यवहार रहा है, महोदय, वह न केवल लोकतंत्र को कमजोर करता है बल्कि संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए उन प्रमुख हस्तियों की अवमानना के भी दायरे में आता है। यह हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, संविधान के व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक प्रमुखों के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखें और कोई ऐसा आचरण न करें जो आचरण देश की भावी पीढ़ी को गलत दिशा की ओर अग्रसर करे। खैर, जिस प्रकार का प्रतिपक्ष है उनसे इसकी अपेक्षा करना अपने आप में एक बेवकूफी जैसा होगा और यही दृश्य हम सबको यहां देखने को मिला है। यह नारी शक्ति का भी अपमान है। एक इतना अनुभवी राजनेता जो सौभाग्य से आज प्रदेश की राज्यपाल के रूप में अपना मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सबको प्रदान कर रही है, उनके प्रति इस प्रकार का भद्र व्यवहार इस समाजवादी पार्टी की वास्तविक सोच को, प्रतिपक्ष की नकारात्मक दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करता है। महोदय, राज्यपाल जी ने अपना जो अभिभाषण संवेद सदन में प्रस्तुत किया वह सरकार की उन उपलब्धियों को लेकर के भी है जो पिछले 8.5-9 वर्षों के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्राप्त किया है। और मैं कह सकता हूं कि पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने एक अपनी यात्रा तय की है। ये यात्रा अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन का, कर्फ्यू से कानून के राज का, उपद्रव से उत्सव की यात्रा और समस्या से समाधान, अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है। यानी जो ये यात्रा है यह इस रूप में प्रस्तुत करता है कि आज देश और दुनिया भी इस बात को स्वीकार करती है कि उत्तर प्रदेश में चेंज आया है। और उत्तर प्रदेश में आखिर क्यों नहीं चेंज आना चाहिए? उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का अधिकार है, उनको भी वो हक मिलना चाहिए था जिसका वो अधिकारी था। लेकिन दुर्भाग्य से अपने संकुचित एजेंडे को लेकर के चलने वाली सरकारों ने प्रदेश के भविष्य के साथ यहां की जनता जनार्दन के साथ खिलवाड़ किया, उनके सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश को अराजकता, अव्यवस्था, अपराध का एक गढ़ बना दिया। कर्फ्यू यहां की पहचान बन गई थी। उन स्थितियों में या उत्तर प्रदेश जिसको हम भारत के शाश्वत मूल्यों
की आधारभूमि मानते हैं। उस उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की व्यवस्था थी यह हम सबने देखा है। लेकिन महोदय, आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि डबल इंजन सरकार की स्पष्ट नीति, साफ नियत, सुशासन की प्रति प्रतिबद्धता के कारण आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को बॉटलनेक से देश की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनाने में सफलता प्राप्त की है। अब यूपी रेवेन्यू डेफिसिट से रेवेन्यू सरप्लस और उपद्रव से उत्सव प्रदेश के रूप में अपनी यात्रा को लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। और महोदय, मैं कह सकता हूं, बजट का अवलोकन आप सबने किया होगा। अब मैं कह सकता हूं कि पिछले 11 वर्ष में देश ने जो यात्रा तय की है, आज देखिए दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा EI इम्पैक्ट समिट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन हुआ है। 5 दिनों तक देश दुनिया के 18 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में यह EI इम्पैक्ट समिट चल रहा है। आज की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इस पर भारत का फोकस कितना ज्यादा है, कैसे अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी के भविष्य के साथ एक बेहतरीन योजना के साथ भारत कार्य कर रहा है, और देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसी परिवर्तन की आधारभूमि हम लोगों ने पिछले 8.5 पौने 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश को बनाया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर दिखता है, उत्तर प्रदेश अब टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक त्रिवेणी बन करके देश और दुनिया के सामने उभरा है। ये त्रिवेणी हमारे लिए टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है। हम इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की धरती प्रयागराज की धरती है। प्रयागराज इसी उत्तर प्रदेश में है, और प्रयागराज की पहचान मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी से भी है। उस त्रिवेणी का एक नया रूप उत्तर प्रदेश के अंदर आज हम सबके सामने टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2017 के पहले की नीतिगत उदासीनता थी, प्रशासनिक स्थिरता थी और विकास विरोधी सोच थी, उसको आज प्रदेश ने अनुशासन, निर्णायक नेतृत्व, स्पष्ट नीति और शुद्ध नियत से आज उसको नए रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। आज हम कह सकते हैं कि डबल इंजन सरकार के कार्यों का परिणाम है कि जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, रोजगार सृजन के अभियान हैं, प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का हो या सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश को सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम या प्रभावी ढंग से आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। महोदय, 2017 के पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश में? 2017 के पहले सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया एक समानांतर सरकार का संचालन करते थे। गुंडा टैक्स और अवैध वसूली उत्तर प्रदेश की नियत बन चुकी थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया उत्तर प्रदेश को झकझोरता था। कानून चंद हाथों की जागीर बन चुका था। कर्फ्यू और दंगा आम बात हो गई थी। पर्व और त्योहार आस्था नहीं, आशंका के केंद्र बन जाते थे। पुलिस का मनोबल टूटा था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बन गया था।
महोदय 2017 के बाद यही उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। आज कानून का राज है। हमने बार बार कहा है, विकास की पहली शर्त रूल ऑफ लॉ है और रूल ऑफ लॉ के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने पूरी मजबूती के साथ काम किया। प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड पुलिस भर्तियां की, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया, युवाओं के लिए नई नई योजनाएं बनाई, मॉडर्न पुलिसिंग और सुदृढ़ साइबर एवं फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश अब फेयर जोन से फेक जोन में बदल गया है। अब उत्तर प्रदेश में भय नहीं बल्कि आस्था के कारण लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं और ये आस्था आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। अब कर्फ्यू कल्चर नहीं है, अब जीरो टॉलरेंस कल्चर ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। अब दंगों की जगह फेस्टिव और टेम्पल टेक्नोलॉजी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, यानी यहां पे ग्रो कर रही है। जो पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक भय की दंगों के कारण अव्यवस्था थी, आज उसकी जगह उत्सव है, यानी फेस्टिव एंड टेम्पल इकोनॉमी प्रदेश के अंदर ग्रो कर रही है। आपने देखा होगा महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन। अभी प्रयागराज में माघ मेला संपन्न हुआ है, कल ही संपन्न हुआ है। कोई सोचता था प्रयागराज में माघ मेला में? कल्पवासी आते थे, पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक 1 महीने का उनका आगमन होता था और कल ही प्रयागराज के महाशिवरात्रि के आयोजन में प्रयागराज में 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में स्नान किया। इस पूरे माघ मेले में पहले कुल कुछ लाख श्रद्धालु आते थे, उसमें कल्पवासियों की संख्या ज्यादा होती थी और इस बार माघ मेले में 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान किया है, तो आस्था की डुबकी लगाया है। यानी ये जो श्रद्धालु आ रहा है उसको व्यवस्था पर विश्वास है, सुरक्षा के प्रति वह आज निश्चिंत है और ये केवल आस्था नहीं है। हम लोग जब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, प्रयागराज की, बहुत सारे मुद्दों पर हम इस बात को कहते हैं। उत्तर प्रदेश तो भारत की आत्मा उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अयोध्या की मर्यादा है, काशी की शाश्वत चेतना है, मथुरा वृंदावन की भक्ति है, तो प्रयागराज की समरसता भी हम सबको त्रिवेणी हो या कुंभ या महाकुंभ इस अवसर पर देखने को मिलती है और इसका परिणाम आज हम सबको देखने को यहां मिल रहा है। 2017 से कोई कॉमनल राइट्स नहीं यूपी के अंदर नहीं हुए हैं। अब हम कह सकते हैं कि यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। महिलाओं को सुरक्षा और व्यापारियों को भय मुक्त वातावरण दिया गया है। इन 8 वर्षों में 2,19,000 पुलिस की भर्ती, इनमें 20% महिला बेटियों के लिए आरक्षण, यानी हम लोग जब आए थे तब उत्तर प्रदेश पुलिस बल में कुल 10,000 महिला कार्मिक थे, आज इनकी संख्या बढ़कर के 44,000 से अधिक हुई है। पुलिस की क्षमता में अभूतपूर्व ट्रेनिंग क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। मुझे याद है 2017 में हम लोग आए थे, हमें पुलिस की भर्ती करनी थी, राज्य के पास ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी। हम लोगों ने मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर हायर किए थे और इस बार 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई है। इन सब की ट्रेनिंग हम उत्तर प्रदेश के स्वयं के ट्रेनिंग केंद्रों में, ट्रेनिंग सेंटर्स में उनकी ट्रेनिंग आज सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर हो रही है।
आज पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। अब खपड़ेल के बैरक की जगह हाई राइज बिल्डिंग में पुलिस कार्मिकों के लिए बैरक बनाए गए हैं। 7 पुलिस कमिश्नरेट मॉडर्न पुलिसिंग का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, तो साइबर थाना और साइबर सेल इनकी पहचान को और तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। फॉरेंसिक साइंस इकोसिस्टम, आधुनिक पुलिसिंग और वैज्ञानिक साक्ष्यों के लिए आज अनिवार्य है। 3 नए कानून लागू होने के बाद पूरे देश के अंदर 7 वर्ष से ऊपर की सजा के लिए फॉरेंसिक एविडेंस अनिवार्य किया गया है, और उस फॉरेंसिक एविडेंस के लिए अब सरकार ने तय किया है कि हम लोग प्रदेश के अंदर पहले केवल 2 FSL लैब थे, फॉरेंसिक जो लैब थी वो मात्र 2 थी। आज हम लोग पहले ही 12 लैब जो ये ग्रेड की है उनको प्रारंभ कर चुके हैं, 6 निर्माणाधीन है, और सभी 75 जनपदों में 2-2 फॉरेंसिक वैन भी प्रदेश के अंदर आज फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आज संचालित हैं। 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर में सेफ सिटी की परियोजना लागू है। यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की 6 वाहिनियां प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं, और यूपी 112 जो इंटीग्रेटेड इमरजेंसी सेवा है, इनको भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे दी है। इसके रिस्पांस टाइम को बेहतर किया है। पीएसी जो दंगाइयों की काल थी, उसको पिछली सरकारों ने अपने स्वार्थ के कारण एक प्रकार से बंदी की कगार पर पहुंचा दिया था। हमने फिर से 34 पीएसी की कंपनियों को पुनर्जीवित किया है, और 3 महिला बटालियन अब पहली बार यूपी पीएसी में गठित हुई हैं, और ये भी 3 उन वीरांगनाओं के नाम पर जिन्होंने देश की स्वाधीनता आंदोलन को एक नई गति दी थी, उनके नाम पर गठित हुई है, जिनमें वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना अवंती बाई और वीरांगना उदा देवी, इन तीनों के नाम पर 3 पीएसी की बटालियन यूपी के अंदर गठित हुई हैं, और 3 नए पीएसी की बटालियन के गठन के लिए प्रदेश तेजी के साथ कार्य कर रहा है। महोदय, प्रदेश अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है। पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, और हम लोगों का मानना है कि विरासत से युक्त विकास ही एक उज्जवल भविष्य की एक आधारशिला होती है। लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए अगर कोई उन आक्रांताओं को महिमामंडन करता है जिन्होंने भारत की आत्मा पर प्रहार किया, जिन्होंने भारत की आस्था को रौंदने का कार्य किया है, मुझे लगता है कि आज का नया भारत, आज का नया उत्तर प्रदेश, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। आप देखें किस प्रकार से, यानी आक्रांताओं को महिमामंडन करना, देशद्रोही तत्वों के समर्थन में बयानबाजी करना, या राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना, ये किसी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। वंदे मातरम का 150वां वर्ष चल रहा है। कुछ लोग हैं, उनमें राष्ट्रगीत जिसे भारत के संविधान सभा ने। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। इलाज का भरोसा शिक्षकों